Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope you're doing great by the grace of Allah. I welcome you to the lecture number 7 of our chapter 17, and today we'll talk about nerve impulse. So, from our previous lectures, we have gathered the knowledge that neurons are the basic structural and functional units of a nervous system, central nervous system of animals, and they carry out the function of conducting nerve impulses. So, now let's talk about what these nerve impulses are. So far from our knowledge of previous lectures, we have learned that nerve impulses are actually signals which travel along the length of neurons. ये signals generate कहाँ से होते हैं? receptors के पास से, यानी उनको receive होते हैं और आगे ये move होकर neurons की मदद से they reach effectors. And these are some signals which are going to pass on through different neurons and then to the central nervous system, and then accordingly a response is going to produce. अब ये जो signal है, ये जो impulse है which is traveling along the neurons which we call nerve impulse, ये है क्या? It is actually a wave of electrochemical changes. जो न्यूरॉन के अंदर पास ऑन चीज़ हो रही है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं विच आर ट्रैवलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स. और जब ये लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर मूव कर रहे होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स, दे इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट्स ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. These are the two things that are happening because of the passage of a nerve impulse in a neuron. So neurons are actually small waves of changes. ऐसे changes जो कि electrochemical हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रहा है और कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, एंड दिस अकर्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स, and simultaneously some chemical reactions and some movements of ions happen across the cell membrane which cause these electrochemical changes to happen. So right here is the definition of nerve impulse. Talking about nerve impulse, there are some terms that we should know about, such as first of all we have electric potential. Electric potential is anything to do with a stored form of energy. You know that potential energy is the energy which is stored. So potential in any sense means something that is stored. So electric potential क्या है? It is the storage or it is the capacity of anything or any object to carry out electrical work, a measure of capacity to do electrical work. Here's the definition of electric potential. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इन अदर मीनिंग्स क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ बैरियर. अब यहाँ पे हम बात करें, ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन होगी, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली अपने न्यूरॉन्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं. दैट अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी जो कि इकट्ठी कहाँ पर होती है? मैनिफेस्ट इस वजह से होती है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ बैरियर. सो लेट्स से देयर इज़ अ बैरियर, अ वॉल, let's say cell membrane in case of any cell. इसके अंदर और बाहर जो आयंस की सेपरेशन है उसकी वजह से जो यहाँ पर एक ग्रेडियंट बनता है, इट कॉजेज सम एनर्जी टू स्टोर इन दिस मेम्ब्रेन. यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम कहते हैं दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड सेल और ये सेल मेम्ब्रेन, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन्स. सो ये एक न्यूरॉन का इनसाइड एरिया है और ये उसका आउटसाइड एरिया है और ये उसकी वॉल है. सो इस वॉल के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको हम कहेंगे दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन. मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं. मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन. So like I just said, in this case we're talking about cell membranes and we're talking about certain cells. और जो बैरियर हमने पहले कहा वो सेल मेम्ब्रेन का बैरियर है, जैसे मैंने अभी बता दिया. तो अगर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, like I just elaborated with an example, तो उसको हम कहते हैं this is membrane potential. And once again we're talking about the membrane of neurons. अब मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो है जो इनसाइड एंड आउटसाइड आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से
एक स्टोर्ड एनर्जी इकट्ठी हो जाती है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और फिर हम उसको कहते हैं ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। न्यूरॉन्स के केस में हमें पता है कि हमें दो कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। एक, न्यूरॉन्स जब अपनी नॉर्मल स्टेट में होंगे विदाउट एनी फंक्शनिंग, जब वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहे होंगे, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ स्टेट व्हेन न्यूरॉन्स विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो ये दो फेजेस न्यूरॉन्स के पास आ जाएंगी, जिनको हम कह सकते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग फेज़ है और एक कंडक्टिंग फेज़ है। जो नॉन कंडक्टिंग फेज़ है, जिस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिक करंट या इम्पल्स पास नहीं हो रही, उसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज़। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सा होगा? वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और द नेट डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। सो अब सेल मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन की है, उसके इनसाइड और आउटसाइड जो आइंस की कंसंट्रेशन है, आइंस का जो डिफरेंस है इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस में, एट द टाइम व्हेन देयर इज़ नो कंडक्टेंस ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन, उसको हम कहते हैं ये उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और उसका हमारे पास मेजर भी है, उसका हमारे पास नंबर भी है, दैट इज़ -70 मिली वोल्ट्स। सो अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्टेट में न्यूरॉन्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेक करें तो वो हमारे पास -70 MV आता है। अब ये -70 MV कहाँ से आया, या ये जो एक आइंस का हमने कहा कि डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड है, वो कौन सा होता है, वो किन आइंस की वजह से होता है? एंड ऑल्सो नोटिस कि यहाँ पर माइनस साइन है, इसका मतलब है कि इनसाइड एंड आउटसाइड का डिफरेंस में ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। तो ये नेगेटिव चार्ज किस वजह से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें -70 की वैल्यू मिल रही है? उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। These factors are first of all concentration of sodium and potassium ions. ये दो आइंस हैं जिनकी concentration inside and outside the membrane of neurons determine करती है उसके resting potential को. Then we have some negative organic ions, leakage of potassium ions from neurons, and also no conductance of impulse. No conductance of impulse का मतलब तो simple understood बात है कि जब न्यूरॉन के अंदर किसी भी इम्पल्स की कंडक्टेंस नहीं हो रही होगी तो वो उसकी रेस्टिंग स्टेट होगी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इम्पल्स के ना गुजरने की वजह से न्यूरॉन्स जो हैं वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में हो सकते, अपनी रेस्टिंग स्टेट में रहेंगे। सो दिस इज़ द अंडरस्टूड थिंग। अब इन तीन को हम देख लेते हैं कि ये तीनों कंडीशंस किस तरह की हैं और ये किस तरह से मेंटेन होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सोडियम पोटेशियम आयंस बैलेंस। इवन दो हमने कहा कि जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो आइंस की कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होता है किसी भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो उसके अंदर डिफरेंट आइंस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस काम के लिए, जिनका नंबर अंदर और बाहर चेंज होने की वजह से एक पोटेंशियल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आइंस जो ये काम कर रहे हैं वो हैं सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। अब अगर हम न्यूरॉन के इनसाइड एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर इन दोनों के एक्टिविटी देख लें कि क्या इनकी अबंडेंस है, तो हमें ये पता चलता है कि न्यूरॉन्स के बाहर जो आउटर जो रीजन है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है? इट इज़ 10 फोल्ड्स मोर, सो 10 गुना ज़्यादा है। जबकि न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है? 20 टाइम्स मोर। सो आउटसाइड 10 फोल्ड्स सोडियम है, इनसाइड 20 फोल्ड्स पोटेशियम है। ऑल्सो इस नंबर की रिटेनेंस के साथ साथ इन दोनों की मूवमेंट भी होती रहती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर इन दोनों तरह के आइंस की मूवमेंट होती रहती है। उसके लिए कुछ पंप्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। इन पंप्स ने पोटेशियम आइंस को अंदर मूव करते रहे ताकि ये वाला जो अमाउंट है वो रिटेन हो सके, और सोडियम आइंस को बाहर निकालते रहना होता है ताकि बाहर सोडियम आइंस की अबंडेंस हो सके। अब ये पंप्स किस तरह से काम करते हैं? दीज पंप्स मूव 2 पोटेशियम आइंस आउट इनसाइड एट वन टाइम। जो एक पंप है वो 2 पोटेशियम आइंस को अंदर डालेगा, 2 पोटेशियम आइंस को, और 3 सोडियम आइंस को बाहर निकालेगा। सो ये जो पंप्स हैं ये इस तरह से काम कर रहे हैं। 3 सोडियम आइंस बाहर निकलेंगे, 2 पोटेशियम आइंस अंदर आएंगे, एंड दीज पंप्स आर
utilize ATP for their functioning, and they actively pump sodium and potassium in and outside of the cell. वो किस तरह से है? Here you can see a diagram of the cell membrane. यहाँ पे हमारे पास है इनर रीजन या साइटोप्लाज्म के रीजन, और ये हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन. इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन्स. ये हमारे पास प्रेजेंट हैं ये प्रोटीन पंप्स. इन प्रोटीन पंप्स ने 3 सोडियम को बाहर निकालना है. यहाँ पर आपके पास सोडियम है और 2 पोटेशियम को अंदर डालना है. ये आपके पास पोटेशियम है. एज यू कैन सी यहाँ से 3 सोडियम बाहर निकल रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं. और ये यूटिलाइज कर रहे हैं एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे और जो एनर्जी निकलेगी उससे ये इन मटेरियल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करेंगे. अब होगा क्या, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, पोटेशियम भी और सोडियम भी, तो एट एनी टाइम लेट्स से कि यहाँ पर भी 5 प्रेजेंट थे और यहाँ पे भी 5 प्रेजेंट थे, तो ये दोनों बैलेंस में होंगे. लेकिन अब यहाँ से अगर 3 पॉजिटिव आयंस बाहर निकल जाएं, -3 हम इसको कर लें, और ये जो 3 है ये बाहर निकल गए हैं, और ऑन दी अदर हैंड जो बाहर वाले हैं वहाँ से -2 करें क्योंकि 2 जो हैं वो अंदर आ गए हैं. तो यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 2, एंड यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा 3. तो अब पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है हमारे पास, आउटसाइड 3, और हमारे पास कम कहाँ पर है, इनसाइड. तो हम ये कह सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है. क्योंकि कम है पॉजिटिव तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव की रेंज में जा रहा है. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मेम्ब्रेन्स, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज अबंडेंट होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज इस वजह से है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पॉजिटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं, 3 सोडियम बाहर निकल रहे हैं, और बाहर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वहाँ से कम पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं. एज यू कैन सी राइट है, सोडियम हमारे पास बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम हमारे पास अंदर जो है वो ज़्यादा है. सो ये जो सोडियम एंड पोटेशियम की पंपिंग है, और इवन दो के बाहर सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा है, स्टिल ये 3 सोडियम एट ऑल टाइम्स इन पंप्स ने बाहर निकालते रहना है. इस वजह से ये इवन दो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ये स्टिल इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाहर करते रहेंगे एटीपी को यूटिलाइज करते हुए. सो दिस इज़ अनदर डिपिक्शन ऑफ द सेम थिंग. आपको यहाँ पर आउटसाइड न्यूरॉन नज़र आ रहा है, इनसाइड न्यूरॉन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास पंप्स हैं. 3 सोडियम बाहर निकल रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनल रीजन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर वाले साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा. नेक्स्ट जो फैक्टर इसी काम में हेल्प कर रहा है वो है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस. ऐसे ऑर्गेनिक आयंस जैसे कि प्रोटीन्स हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन न्यूरॉन्स के अंदर ज़्यादा होती है इनके ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है. तो अब इनकी कंसंट्रेशन न्यूरॉन के अंदर वाली जगह पे ज़्यादा होगी, तो उसका मतलब है कि न्यूरॉन के अंदर वाला रीजन इवन मोर नेगेटिव हो जाएगा. सो जिस तरह से जिसकी वजह से हमें जो वैल्यू है वो -70 की फॉर्म में नज़र आती है. सो एक रीज़न सोडियम पोटेशियम की कंसंट्रेशन की हो गई और दूसरी हमारे पास नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की हो गई. इसी तरह से एक और जो इसके अंदर फैक्टर है वो है लीकेज ऑफ आयंस का. थर्ड पर लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस का. न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो वैसे तो इम्परमिएबल होती है, लेकिन इट इज़ स्लाइटली परमिएबल टू पोटेशियम आयंस. स्लाइटली परमिएबल होने की वजह से जस्ट पोटेशियम आयंस जो है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, या हम कहते हैं कि वो लीक हो जाते हैं बाहर. और क्योंकि पोटेशियम आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ज़्यादा मज़ीद पॉजिटिव चार्जेस के बाहर निकल जाने की वजह से अंदर वाला जो एरिया है वो मज़ीद नेगेटिव हो जाता है. और ये लीकेज जो है, ये प्रोसेस जो इस वॉल के क्रॉस हो रहा है, इट हैपन्स ड्यू टू डिफ्यूजन. यहाँ पे आपको इस पिक्चर में वंस अगेन इस एरिया में आपको दिखाया गया है कि पोटेशियम आयंस जो हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं बाहर, क्योंकि ऑलरेडी पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन अंदर हमने कहा था ज़्यादा थी, अंदर K+ ज़्यादा थे और बाहर Na+ ज़्यादा थे. तो ये इनकी डिफ्यूजन होगी ज़्यादा से कम वाली जगह पर, और इस वजह से भी अंदर ओवरऑल जो न्यूरॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज़ रिटेन्ड. होपफुली आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट कि जब नर्व इम्पल्स पास होती है, रेस्टिंग के बजाय एक्टिव स्टेट होती है, तो तब न्यूरॉन के अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.